पूज्य श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज उपस्थित हैं। और महाराज जी को शायद ही कोई नहीं जानता, ऐसे भक्त हैं हमारे एटलीस्ट जूम परिवार में या जूम कॉन्फ्रेंस में, यहाँ जितने भक्त उपस्थित हैं। तो महाराज जी आज जैसे रविवार है और हमारी प्रणाली है हर रविवार को अंग्रेजी में जपा टॉक होता है, तो महाराज जी आज भी इंग्लिश में या अंग्रेजी में जपा टॉक देंगे। उसका ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा है और साथ ही में अनुवाद भी पूर्ण प्रयास करेंगे। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए हम परम पूज्य महाराज जी श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज से अनुरोध करेंगे कि आज की जपा टॉक प्रारंभ करें। Maharaj, we request you to kindly begin today's Japa talk. I'll try to translate for you. I have a little bad throat, so I'm sorry for that, but I'll try my best to translate. Thank you. Thank you so much, Pranamari Prabhu. Om Jnana Chanandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilatam Jena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapadantikam Nama Om Vishnu Padayam Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachane Nirvishesha Shunyavadi Kalpatubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Bhavebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. I'd like to speak about a very popular topic, but before I begin, I seek the blessings of all the devotees. Kripaya aap sab ashirwad dijiye. Thank you. Hare Krishna. And I'm here in Sri Pandharpur Dham. Haribo. So महाराज जी अभी श्री पंढरपुर धाम से आज की जपा टॉक देंगे और उससे पूर्व महाराज जी सभी भक्तों के आशीर्वाद की याचना कर रहे हैं। So Sri Pandharpur Dham is a very special place. तो श्री पंढरपुर धाम काफी महत्वपूर्ण और दिव्य स्थान है। One of the reasons it's very special to me is that I asked Guru Maharaj if I can leave my body in Pandharpur, Sri Pandharpur Dham. और महाराज जी के लिए विशेष रूप से काफी महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि उन्होंने गुरु महाराज जी से कहा या इच्छा व्यक्त की कि क्या वे अपना शरीर इस धाम में त्याग सकते हैं, श्री पंढरपुर धाम में अपना शरीर त्याग सकते हैं। And Guru Maharaj said, yes, Sri Pandharpur Dham is a holy place, a place of Lord Vithala, a place of Lord Krishna. It's place of Lord Chaitanya, Lord Nityananda, Vishwarup, Chandrabhaga River, holy place. Yes, you can leave your body here. और गुरु महाराज जी ने कहा कि हाँ जरूर तुम अपना शरीर यहाँ पर त्याग सकते हो क्योंकि ये बहुत ही आध्यात्मिक और दिव्य और महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर प्रभु नित्यानंद आए, विश्वरूप आए, स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए और हमारे काफी आचार्य भी यहाँ पर आए हैं। तो काफी महत्वपूर्ण स्थान, विशेष रूप से भगवान विट्ठल की भूमि है, तो जरूर यहाँ पर शरीर त्याग सकते हैं।
So I'm thinking, yes, I want to leave my body here. तो फिर ये उत्तर सुन के महाराज जी विचार कर रहे हैं कि हाँ जरूर मैं मेरा शरीर यहीं त्यागूं। Whether I'll be successful or not, I do not know. महाराज जी कह रहे हैं कि मैं इसमें सफल होऊंगा या नहीं ये तो मैं नहीं जानता। हम जब योजना बनाते हैं तो कृष्णा हंसते हैं. जैसे महाराज जी कह रहे हैं कि जब भी हम कोई योजना बनाते हैं या हम कुछ प्लान करते हैं तो भगवान हंसते हैं। Yes, if you want to see Krishna laugh, you tell him your plans. तो ऐसी भी एक बात प्रचलित है कि यदि आप भगवान को हंसते हुए देखना चाहते हैं या भगवान को आप एक प्रकार से हंसाना चाहते हैं तो आप उन्हें जाके अपने प्लान बताइए। With the mercy of Lord Krishna, with the mercy of the spiritual master, as Guru Maharaj was just speaking about, anything is possible. तो हम जैसे अभी गुरु महाराज कह रहे थे हमारा सिद्धांत ये है कि भगवान और गुरु की कृपा से कोई भी बात या कोई भी कार्य संभव है। Mukam karoti vachalam, pangam langayate girim, yat kripa tamaham vande, Shri Gurundinataranam. By the mercy of the spiritual master, a blind man can see, a lame man can cross the mountains, and a dumb man can speak the most eloquent poetry. तो जैसे इस श्लोक में हम कहते हैं या इसका भावार्थ तात्पर्य यह है कि यदि गुरु महाराज या गुरु की कृपा होती है तो एक गूंगा व्यक्ति बहुत ही सुंदर काव्य गा सकता है, एक लंगड़ा व्यक्ति बड़े बड़े पर्वत चढ़ सकता है और एक अंध व्यक्ति सारी चीजें बहुत ही अच्छे से देख सकता है। So today I would like to speak about that time of death. तो आज महाराज जी हम सभी के साथ इस विषय पे चर्चा करेंगे जो कि काफी महत्वपूर्ण विषय है, हमारे मरने का समय। That we should be preparing for this time. तो हमें एक रूप से इस समय के लिए तैयारी करनी चाहिए। That Krishna explains in the Bhagavad Gita. तो भगवान भगवत गीता में समझाते हैं, Yam yam vapi smaran bhavan chanchante ante kalevaram tam tam eva tikonteyam tadhatad bhava bhavataha. Whatever you remember at the time of death, you will obtain without fail. जैसे भगवत गीता के श्लोक में भगवान कहते हैं कि शरीर त्यागते वक्त हम जिस भी बात या जो भी स्मरण करते हैं, जिसे भी याद करते हैं या जो भी याद करते हैं, हम अगले जन्म में उसे प्राप्त करते हैं। Of course, we want to remember Krishna at the time of death. ये तो बहुत ही स्वाभाविक बात है, हम सब चाहते हैं कि हम भगवान को याद करें जब हमारा शरीर छूट रहा हो। So we can go back to Krishna. So that जिससे कि हम भगवान के पास जा सके। One time a devotee asked Srila Prabhupada, what happens if I don't remember Krishna at the time of death, but I remember you, Srila Prabhupada? तो एक बार एक शिष्य ने श्रील प्रभुपाद जी से पूछा, श्रील प्रभुपाद क्या होगा यदि मैं मेरा शरीर त्यागते वक्त या मरने के समय भगवान को याद न कर पाया, अपितु मैं आपको याद कर लूं तो क्या होगा? Srila Prabhupada said, yes, that is also very good. श्री प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ ये भी बहुत अच्छा है। So we should remember Krishna, we should remember the spiritual master at the time of death. तो इससे हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि शरीर त्यागते समय हमें भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, हमारे गुरु महाराज का स्मरण करना चाहिए। We should remember the Vaishnavas. हमें भक्तों का स्मरण करना चाहिए। We see examples of great personalities, how they left their body. हम जब हमारे आचार्य संतों या दिव्य पुरुषों का चरित्र देखते हैं और किस प्रकार से उन्होंने शरीर त्यागा है। We see Bhishma Dev. तो उदाहरण रूप हम जब भीष्म देव का चरित्र या उनका समय देखते जब उन्होंने शरीर त्यागा, He's lying on the bed of arrows. तो भीष्म देव शरशैया पर लेटे हुए थे। He has the darshan of the Pandavas.
और वो पांडवों का दर्शन कर रहे हैं He has a darshan of Lord Krishna. और स्वयं भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं. He's speaking words of transcendental knowledge and enlightening all of us. और वो दिव्य ज्ञान दे रहे हैं हम सभी को. Just like Srila Prabhupada was lying on his bed and translating Srimad Bhagavatam into a dictaphone up to the last moments of his life. इसी प्रकार से जब हम श्रील प्रभुपाद को देखते हैं, श्रील प्रभुपाद भी अपने जीवन के अंतिम क्षण तक बिस्तर में या एक प्रकार से लेटे लेटे भी श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे थे. This is a glorious way to leave one's body. तो ये सबसे अच्छा या उत्कृष्ट तरीका होता है अपना शरीर त्यागना. Then we see Srila Namacharya Haridas Thakur. और जब हम श्री हरिदास ठाकुर का उदाहरण देखते हैं, He was at Siddha Bakul in Jagannath Puri. वे जगन्नाथपुरी में सिद्ध बकुल में थे. Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu came to see him. और वहाँ स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलने आए. Haridas Thakur was sick. हरिदास ठाकुर ने कहा, And then Lord Chaitanya came to see Haridas Thakur. और वहाँ स्वयं चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से मिलने आए. Lord Chaitanya said, "So, Haridas, what is the news?" तो चैतन्य महाप्रभु ने श्री हरिदास ठाकुर से कहा, हे हरिदास ठाकुर, क्या समाचार है? And Haridas said, "Whatever is your mercy, my dear Lord." और श्री हरिदास ठाकुर ने कहा, हे प्रभु, जैसी आपकी इच्छा और जो आपकी कृपा हो. Then, keeping Mahaprabhu's lotus feet on his chest and gazing into the beautiful face of Chaitanya Mahaprabhu, Namacharya Haridas Thakur Gaya, he left his body. और उस अवस्था में स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का दिव्य चरण कमल अपने वक्षस्थल, अपनी छाती पे धारण करते हुए चैतन्य महाप्रभु का दिव्य सुंदर मुखमंडल का दर्शन करते हुए श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने अपना शरीर छोड़ा. So these two great personalities, so fortunate, Sakshat Bhagavan Darshan, hey, they have direct darshan of the Lord. तो ये दो उदाहरण जो हम देख रहे हैं, वहां पर हम देख पा रहे हैं कि वे अति सौभाग्यशाली भक्त रहे जिन्होंने साक्षात भगवान के मुखमंडल का प्रत्यक्ष दर्शन करते हुए अपना शरीर छोड़ा. Vijay, glorious. तो ये होता है एक कैसे हम कह सकते हैं कि सफलता पूर्वक अपना शरीर छोड़ा उन्होंने. हाँ, सफल, भाग्यवान, बहुत अच्छा, ekdam bahut badhiya. So then we see some devotees, they leave, they don't have direct darshan of the Lord, but still they're successful. और फिर एक हम कुछ उदाहरण हम ऐसे भी देखते हैं या कहीं कहीं पे हम देखते सुनते समझते हैं कि कई भक्तों ने अपना शरीर छोड़ा जिन्होंने भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन तो नहीं किया, अपितु फिर भी वे सफल या भाग्यवान रहे. We see Parikshit Maharaj. जैसे उदाहरण रूप से परीक्षित महाराज हैं. He knew 7 days to live. तो उन्हें पता था कि उनके पास केवल 7 दिवस बचे हैं अब. And what did he do? और उन्होंने क्या किया? He heard Srimad Bhagavatam in the association of devotees from from Shukadev Goswami. उन्होंने उन 7 दिनों में, बचे हुए 7 दिनों में ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया भक्तों के संग में बैठ के स्वयं सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से. So I want all of us to think, Sabhi lok sochata raha hai. Think. What is the most favorable situation for us that we want to plan to leave our body? तो ये सुनते समय हमें ये विचार करना चाहिए या हमारे हृदय मन में हमेशा ये विचार चलना चाहिए कि हमारे लिए सबसे अनुकूल परिस्थिति क्या रहेगी हमारा शरीर छोड़ने के लिए. Yudhisthira Maharaj, he said the most wonderful thing is that everyone is leaving their body, but everyone thinks that no, it's not going to happen to me. तो जब यक्षों ने पूछा था युधिष्ठिर महाराज से, कुछ प्रश्न पूछे थे, उसमें से एक प्रश्न ये भी था कि सबसे अद्भुत या विचित्र चीज क्या है इस पूरे ब्रह्मांड में या सर्जन में. तो उन्होंने कहा था
कि प्रत्येक जीव दूसरों को मरते हुए या देह त्यागते हुए देखता है, लेकिन वो सोचता है ये मेरे साथ कभी भी नहीं होगा। But yes, it will happen to all of us. अपितु सत्य तो ये है कि ये हम सभी के साथ होगा, हमारा भी एक न एक दिन नंबर आएगा। So think, what is the most favorable situation for us that we would like to plan to leave our body? तो हम सभी को ये विचार करना चाहिए या सोचना चाहिए कि हमारे लिए सबसे अनुकूल परिस्थिति क्या रहेगी शरीर छोड़ने के लिए। हमें इसका एक प्रकार से हमें इसकी योजना बनानी होगी। Write in the chat now. चैट में अभी लिख सकते हैं। You Where want would them you to like to leave write, your Maharaj? I'll body? have to on the chat. You want them to write? Yes. तो महाराज जी चाहते हैं कि चैट अभी जो आप सभी के लिए अवेलेबल है, आप चैट में अभी अभी लिखिए आपकी क्या योजना है या आप क्या चाहते हैं अपना शरीर त्यागने के लिए, क्या परिस्थिति होगी आपके लिए अनुकूल। Where would you like to leave? आप अपना शरीर कहाँ छोड़ना चाहते हैं, What situation? किस परिस्थिति, किस अवस्था में, Describe your ideal departure. और आप अपना एक प्रकार से यहाँ से जाने का पूरा प्लान, पूरी योजना विस्तृत रूप से बताइए। Who would you like to be with? आप किनके साथ रहना चाहते हैं, And what would you like to be happening? और जब आप शरीर छोड़ रहे तो आसपास क्या होना चाहिए तब। We see many chats are coming in. और काफी आप में से काफी भक्त लिख रहे हैं, Please read the chats. They're very enlightening. तो आप सभी भक्तों से अनुरोध है केवल लिखिए नहीं, अपना उत्तर देने के बाद पढ़िए भी। काफी प्रोत्साहक बातें बता रहे हैं भक्त। This is wonderful. Thank you for sharing. तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। So many of us are saying, I want to leave my body in Vrindavan. तो आप में से काफी भक्तों ने कहा कि आप में से प्राय सभी भक्त या काफी भक्त श्री वृंदावन धाम में अपना शरीर छोड़ना चाह रहे हैं। Some are saying Radha Kund. कुछ भक्त राधा कुंड भी कह रहे हैं। Srila Bhakti Tirtha Swami Maharaj, he left his body in America. He chose to leave at Gita Nagari in America. श्रील भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, जो कि श्रील प्रभुपाद के एक वरिष्ठतम शिष्यों में से थे, उन्होंने अपना शरीर छोड़ने के लिए कौन सा स्थान चुना? अमेरिका। And he left surrounded by wonderful devotees chanting the Maha Mantra. और वहाँ अमेरिका में गीता नगरी जो मंदिर या प्रोजेक्ट है, वहाँ पर फार्म में महाराज जी ने अपना शरीर छोड़ा, जहाँ की आसपास भक्त कीर्तन कर रहे थे। All ISKCON centers are embassies of the spiritual world. तो हमें ये समझना होगा या हमें ये पता होना चाहिए कि इस्कॉन के जितने भी मंदिर है पूरे पृथ्वी में, वे सारे एक प्रकार से आध्यात्मिक जगत के केंद्र है। So the time of death is our final exam. तो जैसे हम सब जानते हैं कि जो मृत्यु का समय है वो एक प्रकार से हमारी अंतिम परीक्षा है। I have a friend, his name was Stoka Krishna Prabhu. महाराज जी के एक मित्र थे जिनका नाम था स्तोक कृष्ण प्रभु। We used to preach together in Jalgaon. और जलगांव में हम साथ में प्रचार करते थे, महाराज जी कह रहे हैं। We stayed together in Mumbai. और मुंबई में महाराज जी उनके साथ रहते थे। And he found out he had cancer. और उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है। And he left his body in the temple ashram surrounded by hundreds of devotees chanting the Maha Mantra. और उन्होंने अपना शरीर मुंबई के चौपाटी के मंदिर के ब्रह्मचारी आश्रम में छोड़ा, जहां पर हजारों की संख्या में भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे उनके शरीर छोड़ने के समय। I notice in these chats that no one is saying, I want to leave my body alone. तो एक बात महाराज जी ने देखी चैट में, जब आपसे पूछा गया तो आप सभी के जवाब में किसी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं मेरा शरीर अकेला छोड़ना चाहता हूँ या जब मैं अकेला हूँ। Akendra Gaur Prabhu from Govardhan Eco Village, Wada, he says, I want to leave with all the Vaishnavas present. तो हमारे गुरु भाई एकेंद्र गौर प्रभु जो कि वाड़ा गोवर्धन इको विलेज में रहते और सेवा करते हो, उन्होंने लिखा है कि मैं चाहता हूं कि जब मैं शरीर छोड़ूं तो मैं भक्तों के मध्य में शरीर छोड़ूं। So having the association of devotees at the time of death is very, very important.
तो मृत्यु के समय भी भक्तों का संग होना या भक्तों की उपस्थिति होना बहुत ही आवश्यक है। Thus, our relationships with devotees are supremely important. तो इसे समझते हुए एक सिद्धांत या एक बात काफी महत्वपूर्ण है कि हमारे संबंध भक्तों के साथ कैसे है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन जाता है हमारे जीवन का। It doesn't matter if we leave our body, Vrindavan, Mayapur, Pandharpur, Aravade, Ichalkaranji, Sangli, Nagpur. Doesn't matter if, as long as we're surrounded by loving devotees. तो इससे जहाँ पर या कहाँ पर हम हमारा शरीर त्याग रहे हैं, पंढरपुर, अरवड़े या इचलकरंजी, सांगली, नागपुर, किसी भी स्थान पे हम हमारा शरीर त्यागे, पर भक्तों की उपस्थिति होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। So our relationships with devotees are of topmost importance. तो हमारे भक्तों के साथ जो संबंध है वो एक प्रकार से सर्वोच्च या सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे आध्यात्मिक जीवन की। Bhakti Tirtha Maharaj said that the devotees in our community, the devotees we are with now, will very likely be those same devotees that will be surrounding us at the time of our death. श्रील भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जी ने काफी महत्वपूर्ण बात बताई है, सभी भक्ति से ध्यान से सुनिए। महाराज जी कहे कि हम अभी जिन भक्तों के मध्य में रह रहे हैं या जिन भक्तों के साथ है, लगभग लगभग वही भक्त उपस्थित होंगे जब हम हमारा शरीर त्याग रहे होंगे। So we should be very careful to cultivate loving relationships with the devotees around us. तो हमें ये बात का बहुत ही ध्यान रखना होगा कि हम हमारे आसपास या जो भक्त है उनके साथ कैसे संबंध बना रहे हैं। So how to cultivate those loving relationships with devotees? तो किस प्रकार से कैसे हम भक्तों के साथ स्नेह पूर्वक और अच्छे संबंध बना सकते हैं, That is a big topic. और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा विषय है। We don't have time to get into this today. अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इसकी चर्चा करें, But if I am fortunate to have another opportunity to speak in the future, I will bring this topic up. महाराज जी कह रहे हैं कि यदि दैववश उन्हें पुनः सौभाग्य और सन्निधि प्राप्त हुई भविष्य में कभी तो जपा टॉक देने की, तो महाराज जी जरूर इस विषय पे बात करना चाहेंगे। I will speak about Vaishnav relationships. महाराज जी भक्तों के संबंध, वैष्णवों के संबंध के विषय में बात करेंगे। So I will conclude now and I will ask if there are any comments or questions from the devotees. तो महाराज जी यहीं पर इस विचार के साथ अपना वक्तव्य या अपनी वाणी को एक रूप से विराम देना चाहते हैं, लेकिन उसी के साथ महाराज जी चाहते हैं कि आप में से किसी भक्तों के कोई प्रश्न, टीका या टिप्पणी है तो आप, maybe they can raise their hands, Maharaj, we can unmute them. Yes, I see Shubha Lakshmi Mataji. तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं, जैसे शुभ लक्ष्मी माता जी ऑलरेडी अपना हैंड रेज किए हैं, तो आप अपने डिजिटल हैंड रेज कीजिए अपने टीका टिप्पणियां प्रश्न प्रस्तुत करने, हम उन्हें अनम्यूट करेंगे। शुभ लक्ष्मी माता जी। Hare Krishna, Dhanarpara Maharaj. Maharaj, you said that when we plan something, God laughs on us. So why it's so? Is it because we are foolish to plan and whatever happens, it happens just because of God's mercy? Does he laugh on us for that? So you want to translate her question? Yes, Maharaj. तो शुभ लक्ष्मी माता जी पूछ रहे हैं कि महाराज जी ने आज के टॉक में एक मुद्दा बताया प्रारंभ में ही कि यदि हम भगवान को हंसाना चाहते हैं या हंसते हुए देखना चाहते हैं तो हमें भगवान को अपनी योजना बतानी होगी। तो माता जी कह रहे क्यों ऐसा है कि हम इतने मूर्ख हैं, हम इतने अधम है कि हम कुछ भी हमारी योजना नहीं बना सकते, और क्या ऐसा है कि हमारा पूरा जीवन एक प्रकार से केवल भगवान के ऊपर ही आधारित है? So yes, Lord laughs on us because we are foolish. Mork, हम मूर्ख है। तो महाराज जी उत्तर दे रहे हैं कि हाँ, एक प्रकार से या हम मूर्ख है वास्तविकता से, इसीलिए भगवान हम पे हंसते हैं। We think we are the Ishwara, the controller of our activities. और जब हम कोई योजना बनाते हैं, या जैसे हम कहते हैं प्लानिंग शब्द सभी जानते हैं प्राय, हम कोई प्लानिंग करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम ईश्वर है, हम जो चाहेंगे वो होगा।
We're like a child building a castle in the sand. तो हम एक प्रकार से जब हम कोई योजना बनाते हैं, तो जैसे आप सभी ने अपने बचपन में या देखा भी होगा या किया भी होगा, बच्चे जैसे समुद्र तट पे गीली मिट्टी या मिट्टी में कोई बड़ा महल बनाते हैं, But we don't know that any moment some wave from the ocean और वो बच्चे जब वो बनाते हैं तब उन्हें ये स्मरण या ये ज्ञात नहीं होता है कि किसी भी क्षण समुद्र से एक छोटी सी लहर आके उनके पूरे साम्राज्य का विनाश कर देगी। Ishvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha. Krishna is the Ishvara. We are just murk if we think we are the Ishvara. तो एक प्रकार से हम पूर्ण रूप से मूर्ख है यदि हम ये सोचे कि हम ईश्वर है या हम कुछ कर सकते हैं, जबकि सिद्धांत तो ये है कि ईश्वर भगवान ईश्वर है, सच्चिदानंद है। तो एक प्रकार से मूर्खता है यदि हम ये सोच ले कि हम ईश्वर है। Does that answer your question, Mataji? जी महाराज जी, धन्यवाद। Dhanyawad. Thank you so much, Mataji. मित्र बिंदा रानी माता जी। हरे कृष्णा गुरु महाराज जी। Hare मेरा एक Krishna. प्रश्न था कि जैसे आपने बताया कि मृत्यु की हमें तैयारी करनी चाहिए, लेकिन कहते हैं कि मृत्यु तो बिना बताए आ सकती है ना, उसका तो कोई ऐसा वो विशेष तरीका नहीं रहता है कि वो कैसे आएगी। तो मुझे वही जानना था कि ये मृत्यु की तैयारी तो हम कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे आएगी हमें ये तो नहीं पता है ना। So Maharaj, she is asking that you did say we should prepare and plan our death or prepare for our death, but as we hear, death is like comes like uninformed. We do not know when we are going to die. So how should we actually plan, or what to do when we don't know that when it is going to actually happen? Well, thank you for your question. Dhanyawad aapka acha prashna hai. We have basically two death situations. Situation number one, we have some advance warning like Parikshit Maharaj. Or situation number two, bang, it happens very unexpectedly. तो महाराज जी कह रहे हैं, माता जी आपका प्रश्न अच्छा है। तो मरने के लिए केवल दो मरण अवस्था की केवल दो प्रकार है। एक जो परीक्षित महाराज के पास थी, जहां पर उन्हें बताया था या उन्हें पता था 7 दिनों में मरने वाले हैं। तो एक अवस्था तो वो हो गई जहां उन्हें पता हो या हमें पता, और दूसरी अवस्था ये है जहां पर एकदम से मृत्यु हो जाए बिना बताए या बिना पता होने के। So option one, it happens quick. Maybe we get hit by a bus. Boom. तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम जा रहे और हमारा एक्सीडेंट हो जाए, बस से हम टकरा गए और हम मर गए। No, we don't know. We cannot do much about that. तो ऐसी अवस्था के विषय में तो हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। But we can prepare Kirtanaya Sadahari by constantly chanting the holy names. पर कोई भी अवस्था हो, हमें कीर्तन सदाहरि का स्मरण करते हुए या हमेशा अपने जीवन में कीर्तन या भगवान का नाम लेने की तो अभ्यास करना ही चाहिए। Today during the Japa talk, Guru Maharaj had a picture of Prabhupada, and the picture was saying, always chant in every circumstance. You don't know what is going to happen. आज जब हम जप कर रहे थे गुरु महाराज जी के साथ, आपने देखा होगा गुरु महाराज जी के पीछे श्री प्रभुपाद का एक चित्र था और श्री प्रभुपाद के चित्र के नीचे लिखा गया था, ये चाहे कोई भी अवस्था हो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहिए। So chant 24 hours a day. You never know when a bus might hit you. तो एक प्रकार से इसका जवाब होगा कि आप 24 घंटा हरे कृष्ण महामंत्र का हमें जप करना होगा। हम नहीं जानते कब बस आएगी और हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। Then the second option is you have some idea, like Kadamba Kanana Maharaj. Right now, he's in Vrindavan. He has stage 4 cancer. और दूसरा प्रकार है, जैसे हमने कहा कि आप परीक्षित महाराज के तरह उन्हें पता हो, जिस प्रकार से परम पूज्य श्री कदम्ब कानन स्वामी महाराज जो अभी श्री वृंदावन धाम में है और इसकी एक प्रकार से तैयारियां ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको 4थे स्टेज का कैंसर है और वे जानते हैं इस बात को। He has 80, more than 80, Asi, he has more than 80 tumors in his lungs. उनके फेफड़ों में 80 से ज्यादा एक प्रकार से ट्यूमर या कैंसर की गांठें हैं। So he knows soon he'll go. और वे जानते हैं कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। So he's surrounding himself with his dear devotees around him. और वे वृंदावन धाम में स्थित होकर अपने भक्त और शिष्य को एकत्रित कर रहे हैं या उनके बीच है अभी। He's preaching. और वे प्रचार भी कर रहे हैं। He's chanting and hearing. वो जप कर रहे हैं, वो श्रवण कर रहे हैं भागवतम इत्यादि हरि नाम का।
And he's very fortunate. His Diksha Guru, Param Puja Jai Advaita Swami Maharaj, is also there with him. और वे काफी सौभाग्यशाली है क्योंकि उनके दीक्षा गुरु परम पूज्य श्रील जय अद्वैत स्वामी महाराज भी वहां उपस्थित है. So in this way, he's preparing to leave in the most opportune, the best, most favorable circumstance. तो इस प्रकार से महाराज जी सबसे उत्कृष्ट तैयारियां कर रहे हैं अपना शरीर त्यागने के लिए. So we like this we can prepare. तो दूसरा तरीका है कि इस तरह से हम तैयारियां कर सकते हैं. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is most important preparation. नोएडा से शालिनी माता जी. Yes, go ahead, Mata ji. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु की जी। आवाज नहीं आ रही है माता जी, कैन यू बी बिट लाउडर प्लीज? हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए. प्रभु जी, कल मेरी माँ ने देह त्याग किया है, वो कैंसर से पीड़ित थी, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ अगर मैं उनके लिए जो भी साधना करूंगी तो क्या मेरी साधना उनको लगेगी? और प्रभु जी मैं चाहती हूँ प्लीज आप सभी इस क्लास में एक बार प्रेयर भी करवा दीजिएगा. So Mataji is asking, yesterday her mother left her body due to cancer. So can she do some, how should I say, some sadhana for her, and will it be accepted if she does some sadhana for her? Okay. Thank you for sharing this with us, Mataji. Dhanyawad. I would like to first of all offer my sincerest condolences to you for the departure of your good mother. So Mataji, आपके मातुश्री के निधन के लिए महाराज जी और हम सभी भक्त हृदयपूर्वक हमारी भावनाएं या श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं. You must be going through a very difficult time now. तो अभी आप काफी गंभीर स्थिति से गुजर रहे होंगे. So I'm praying, and I'm sure all the devotees here are praying for for your spiritual strength and the spiritual strength of your family. और स्वयं महाराज जी और महाराज जी के साथ हम सभी भक्त आपको आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करें भगवान. इस परिस्थिति से पसार होने के लिए या निकलने के लिए हम सभी प्रार्थना कर रहे हैं. And yes, we can do some additional chanting or sadhana for the benefit of your mother. That is very good. और हाँ, यदि आप अपने माता जी के लिए कुछ अधिक जप और साधना करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है. And now I would like to ask all the assembled devotees here on the Zoom talk to together let us chant the Hare Krishna Maha Mantra for the benefit of your mother. तो शालिनी माता जी के लिए आइए हम सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं उनकी मातुश्री के लिए प्रार्थना करते हुए. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So yes, you can do many things like reading chapters of Bhagavad Gita every day, chanting extra rounds. You can conduct feast for the devotees at the right day. और बहुत काफी कुछ कर सकते हैं माता जी उनके लिए. अधिक जप कर सकते हैं, भगवत गीता के जो कुछ अध्यायों का आप अध्ययन कर सकते हैं, और जब सही समय होता है आप भक्तों को प्रसाद के लिए भी आमंत्रित कर सकते हैं या भक्तों को प्रसाद दे सकते हैं. तो काफी बातें होती है करनी है और आप कर सकते हैं. You can do kirtan with your family. अपने परिवार के साथ कीर्तन भी कर सकते हैं आप. You can speak with the local leaders in your yatra and they will guide you further on the details. तो आप जहाँ पर है आप स्थित है वहां से के भक्तों से और चर्चा कीजिए, आपको अधिक जानकारी और मार्गदर्शन देंगे इस विषय पे. Hare Krishna. राजेंद्र काले जी. आपकी आवाज नहीं आ रही है. मे भी आप पुनः प्रयास कर सकते हैं प्रभु जी, हैंड रेस कर दीजिएगा. लक्ष्मी माता जी नागपुर से, लक्ष्मी दामले जी.
Hare Krishna. Hare Krishna. Dandavat Pranam. It's an honor talking to you. Prabhuji, you said that God laughs when you plan something. But then how to know what his plans are? Is there any way? Like if you want to do something and you don't know whether you should be doing or not, Yeah, then how to know? yeah, we can consult the senior Vaishnavas. Okay. माता जी And, का प्रश्न है यहाँ पर कि महाराज जी आपने पुनः वही एक प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं माता जी के। आपने कहा कि हम भगवान, जब भगवान को हमारी योजना बता दे तो भगवान हंस देते हैं, तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि भगवान की क्या योजना है? तो महाराज जी इसका उत्तर बहुत ही सुंदर रूप से दे रहे हैं। महाराज जी कह रहे कि आप अपने जो प्रगत भक्त है या सीनियर डिवोटी जिन्हें कहते हैं, अपने काउंसिलर कहिए, अपने जो आपको मार्गदर्शन दे रहे एक प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में, उनसे पूछिए। And we should make sure that we don't over endeavor for material things, that our spiritual life should always be a priority for us. और हमें इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि हम हमारे भौतिक जीवन में कुछ इतने प्रयास न कर ले कुछ प्राप्त करने के लिए। हमेशा हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए हमारा आध्यात्मिक प्रगति या हमारा आध्यात्मिक जीवन। We should practice the principles of Sharanagati. और हमें जो शरणागति के सिद्धांत है उसका सुचारू ढंग से उसका पालन करना चाहिए। Always accept that which is favorable to Krishna consciousness. और हमेशा हमें उसे स्वीकार करना चाहिए जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल है। And avoid that is unfavorable to Krishna consciousness. और जो भी अनफेवरेबल या जो प्रतिकूल है उसका हमें त्याग करना चाहिए। So these are the basic principles. ये कुछ बहुत ही बेसिक या बेसिक सिद्धांत है हमारे आध्यात्मिक जीवन के। And the senior devotees, they can help us with the details. और हमारे जो प्रगत भक्त जिनके मार्गदर्शन में हम आध्यात्मिक जीवन का पालन कर रहे हैं वो हमारी अधिक हमें जानकारी दे सकते हैं इस विषय में। Just like the king has the mantris. एक प्रकार से जिस प्रकार से एक राजा के भी मंत्री होते हैं, So you can Mantris, also have senior devotees who advise you. तो आपके भी कुछ भक्त हो सकते हैं जो आपको मार्गदर्शन दे। And Maharaj ji, what is the relevance of that shloka when you go to a temple and after having the darshan, when you sit there for a few minutes, you chant one shloka that is Dehante Tava Sanidhyam, something like that. You pray to God that it's 2 lines it is. Dehante Tava Sanidhyam Dehime Parameshwaram it is said. Anayasena Maranam Vina Dainyena Jivanam Dehante Tava Sanidhyam Dehime Parameshwaram. This is what elders told us to chant whenever you visit a temple. So, does it have any relevance when we come into Krishna consciousness? So thank you so much. There are 9 processes of devotional service. तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में भक्ति एक प्रकार से करने के 9 प्रकार या 9 स्तर है। Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. So Vandanam means prayers. तो उनमें से जो पहला है वंदनम, उसका मतलब है प्रार्थना। So when you sit in the temple and you recite the prayers, that is Vandanam. तो जब भी आप मंदिर जाते हैं और बैठते हैं और कोई प्रार्थना करते हैं तो वो वंदनम के अंतर्गत आता है। So that is the devotional service. तो वो भक्ति के स्तरों में से एक ही है। The relevance of the particular shloka that you mentioned, I'm not sure. I'm not familiar with this shloka. महाराज जी कह रहे हैं आपने जो The shloka says Anayasena Maranam, not much trouble. Without much trouble, I should die. And Vina Dainyena Jivanam, I should not be dependent on people serving me. And Dehante Tava Sanidhyam, that is after death, I should get your
that place wherever you are living. That is a prayer to God. And Dehi me Parameshwaram, please grant me this. That is how devotee prays to God. So Well, that Mataji, let me just say a few words. That Srila Prabhupada taught us that when we pray to Krishna, the mood, we should preface what we say with, if it is your desire. So the desire of Krishna is most important thing. तो माता जी के प्रश्न पे महाराज जी कह रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है कि हम जब भी कोई भी प्रार्थना करते हैं तो हमारे प्रार्थना का मुख्य आधार ये रहता है कि भगवान यदि आप चाहे तो, यदि आपकी इच्छा हो तो ये याद रखना चाहिए कि कोई भी प्रार्थना करने में हमें ये जरूर चाहना है या कहना है कि यदि भगवान की इच्छा हो तो, यानी भगवान की इच्छा हमारी इच्छा से प्रबल है. We don't go to Bhagavan with a shopping list. तो हम भगवान के पास कोई सूची या शॉपिंग लिस्ट लेके नहीं जाते. We want that, like Prabhupada told his disciples, Prabhupada was very sick. एक समय श्रील प्रभुपाद काफी बीमार थे और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, It looked like Prabhupada was going to leave his body. श्रील प्रभुपाद कहे कि लग रहा है कि अब मैं मेरा शरीर त्यागने वाला हूँ. And then Srila Prabhupada told them they should pray, my dear Lord Krishna, if it is your desire, please keep my spiritual master here longer. He has work to do. श्री प्रभुपाद ने एक प्रार्थना दी थी अपने शिष्यों से कि वे भगवान से प्रार्थना कहे कि हे भगवान, यदि आप चाहे, ये काफी महत्वपूर्ण बात है, यदि आप चाहे तो आप हमें गुरु महाराज जी को और ज्यादा समय दीजिए क्योंकि उन्हें और बहुत से कार्य करने हैं. So I would recommend for you to read the Nectar of Devotion. तो आप माता जी भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन और पढ़ाई या एक प्रकार से अध्ययन कीजिए. There's a section there on reciting notable prayers. और वहां पर एक प्रकार से एक पूरा चैप्टर या अध्याय ही है जिसका शीर्षक ही है किस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी चाहिए. And you may find some prayers there that you find favorable for your devotional service. और वहां पे हमारे आध्यात्मिक जीवन से संबंधित काफी महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं भी दी गई है. So yes, when we go to the temple, we should recite notable prayers. और जब हम मंदिर जाते हैं तो हाँ, हमें कुछ महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं जरूर करनी चाहिए. And we should especially be interested in reciting the prayers of our Gaudiya Vaishnava Acharyas. और सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा या सबसे अच्छा ये रहेगा कि हमारे जो गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने जो प्रार्थनाएं की है उसी को हम दोहराएं. Does that answer your question? आशा है इससे आपको आपके प्रश्न का समाधान हुआ होगा माता जी. So we are running out of time. That's good. Okay. Maybe we are running out of time. Huh? We should conclude. Yeah, one last question, Maharaj, we can take and then we can conclude. All right. Shri Darshini Mataji. Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances. Hare Krishna. So it's always a bliss to hear your lectures, and the way you use Tampura and sang Mangalacharan was so good to hear. So my question is that there are so many deities, so we get attached to various deities. For a particular time, I get attached to Radha Raman, then Radha Shyam Sundar. But how to focus the love for a particular deity so that we can concentrate on that deity while leaving our body? Can you translate? Yes, Maharaj. माता जी पूछ रहे हैं कि हम प्राय मान लीजिए हम वृंदावन गए तो हम राधा रमन या राधा श्याम सुंदर से आकर्षित हो जाते हैं, फिर हम कहीं और जाते हैं तो हम किसी और विग्रह से आकर्षित हो जाते हैं. तो किस प्रकार से हमें मुख्य रूप से एक ही विग्रह के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर सके या हम उनसे आकर्षित रहे ताकि हम देह त्यागते वक्त उन्हीं का स्मरण करें, ये माता जी का प्रश्न है. So I can think of two answers. महाराज जी का ध्यान दो उत्तरों की ओर जा रहा है. Actually 3 answers. एक रूप से तीन जवाब देंगे महाराज जी इसके. Okay, number 1 is practice makes perfect. तो पहला उत्तर है practice makes a man perfect. Yeah, I was in Govardhan Eco Village at their Madan Mohanji Mandir. तो महाराज जी एक समय गोवर्धन इको विलेज में वहां पर जो मदन मोहन जी का मंदिर है वहां थे. And the
the deity of Madan Mohanji was carved, exact replica of the deity in Vrindavan. तो वहां पर जो विग्रह है वो वृंदावन के मदन मोहन जी का एक प्रकार से प्रतिभू विग्रह एग्जैक्ट उनके जैसे ही बनाया गया है इन्हें भी। How did they do it? तो उन्होंने कैसे किया ये? Did they take photo of the deity from different angles and then carve? क्या उन्होंने विग्रह का बहुत सारी तस्वीरें खींची अलग अलग एंगल से और फिर ये नया विग्रह बनाया? 4K photo, maybe video? उन्होंने वीडियो लिया, 4K फोटो, ऐसे कुछ किया? No, the pujaris are not allowing cameras in the mandir. तो मदन मोहन जी के मंदिर में तो कैमरा अलाउड नहीं है। And the deity is long distance from the darshan mandap. दर्शन मंडप से काफी दूरी पर है मदन मोहन जी का विग्रह। So the devotees, they sent 3 devotee artists. तो उन्होंने 3 भक्तों को जो कि विग्रह शिल्प का थोड़ा सा ज्ञान रखते थे उन्हें भेजा। And they sat in the darshan mandap and they had darshan of Madan Mohanji all day long. और वे मदन मोहन जी के मंदिर में बैठे और उन्होंने मदन मोहन जी का दर्शन पूरे दिन किया। And then nighttime they would paint और रात में वो पेंट करते थे what they had seen. और उन्होंने क्या देखा उसे वो बना एक पेंटिंग करते थे उसका। Next day again they would go back. और अगले दिन पुनः वे जाते थे। All day long they would have darshan. पूरे दिन बैठ के वे दर्शन करते थे वहां पर। रात को paint करेंगे. और रात को पुनः पेंट करते थे जो देखा उससे। So by repetition, again and again, having long darshans, we can try to embed the impressions of that deity on our consciousness. तो एक प्रकार से एक जवाब तो ये हुआ कि हम जिस भी विग्रह का हम दर्शन लंबे समय तक करते रहते हैं उनके हमारे मस्तिष्क पे या हमारे मानसिक स्तर पे उनका प्रतिभू अपने आप बनता है। Okay, answer number 2. तो दूसरा उत्तर ये रहेगा attention to the details. कि हमें जो विग्रह की डिटेल्स है यानी हर छोटी-छोटी बातों पे हमारा ध्यान होना चाहिए। I knew one Prabhupada disciple named Radhakund Prabhu. He left his body. तो श्री प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे राधाकुंड प्रभु जो अब हमारे बीच नहीं रहे। And every day he would be very focused on the darshan. और वे दर्शन के ऊपर काफी महत्व देते थे। जब दर्शन करते थे काफी ध्यान और गंभीर होते थे। And then he would ask me, describe the darshan. How many flowers were there on the altar? और वे पूछते थे कि अब बताओ तुमने आज जो दर्शन किया उसमें कितने पुष्प थे भगवान के रत्न सिंहासन पे या वेदी पर। How many flowers in Krishna's garland? What color they are? भगवान के जो माला थी उसमें कितने पुष्प थे और कौन से रंग के पुष्प थे। How many rings on Krishna's hand? और भगवान की उंगलियों में कितनी अंगूठियां थी। And where was Krishna's peacock feather? और भगवान का जो मोर पीछ है मयूर पंख वो कहाँ था। Like this he would spend so much time remembering every detail of the darshan. इस प्रकार से वे दर्शन के बाद काफी समय लेते थे या दर्शन के समय ही काफी समय लेते थे भगवान का दर्शन करने में। This is a nice topic for discussion amongst devotees to cultivate Krishna consciousness. तो भक्तों के बीच अपना कृष्ण कॉन्शियसनेस बढ़ाने के लिए ये बहुत ही अच्छा एक प्रकार से विषय बन जाता है। And every day is different. और रोज अलग-अलग श्रृंगार होता है भगवान का। Because the pujaris are doing their wonderful seva. पुजारी एक प्रकार से बहुत ही अच्छे से भगवान को तैयार करते हैं। It's a nice topic for discussion. Bodhayantas parasparam. तो इसकी हम चर्चा भी कर सकते हैं भक्तों के बीच। Okay, answer number 3. और तीसरा उत्तर ये रहेगा The mercy of the Lord and the mercy of the spiritual master. भगवान की और गुरु की कृपा। If we want to imprint a particular deity upon our heart, then we have to pray to that deity that please appear in my heart, please let me have your darshan. तो यदि हम चाहते हैं हम किसी विग्रह का दर्शन करते वक्त या उनका स्मरण या उन पे मनन करते वक्त हमारा देह त्याग है तो हमें उस विग्रह उन डीटी से हम उन भगवान से हमें प्रार्थना करनी होगी। And ultimately, it's the pleasure of the spiritual master and our dedication to his mission and his pleasure that will give us all success.
और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत तो ये रहेगा कि हमारे गुरु की प्रसन्नता, अगर वे चाहेंगे, हमारी सेवाओं को देखते हुए, हमारा जो डेडिकेशन है प्रभुपाद के मिशन को, उसको देखते हुए जब गुरु हम पे प्रसन्न होते हैं, तब वे हमें कुछ विशेष आशीर्वाद देंगे, तभी तो ये संभव है। Yasyat prasadat bhagavat prasado. Yasyat prasadan nagatith kutopi. Dayam stuvam stasya yasyastri sandhyan vande guru shri Charnaravinda. So by the mercy of the spiritual master, when the spiritual master is pleased, then Krishna is pleased and we'll gain all benefits. जैसे हम गाते हैं मंगल आरती में, जब गुरु महाराज प्रसन्न रहते हैं या गुरु प्रसन्न होते हैं, तभी भगवान प्रसन्न होता है। जब भगवान और गुरु प्रसन्न होते हैं, तभी हमें कृपा प्राप्त होती है। So there you have 3 answers to your question. तो माता जी, आपके प्रश्नों के एक नहीं 3 जवाब दिए हैं। Practice, एक है प्रैक्टिस, abhyas, यानी अभ्यास करना, attention to detail, और हर एक जो डिटेल है उस पे हमारा ध्यान रहना, and the mercy of Lord Krishna and the spiritual master. तो गुरु और गौरांग की, भगवान कृष्ण की कृपा, ये 3 जवाब है। Is that okay? आशा है इससे आपको संतुष्टि हुई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you all for joining the Japa talk today. I'm so grateful to all of you. तो महाराज जी, आप सभी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं कि आप सब आज जपा टॉक में उपस्थित रहे। Wishing you a very blissful day in Krishna consciousness. तो आप सभी को महाराज, हम सभी को महाराज जी, आज का दिन सफल हो आध्यात्मिक दृष्टि से, ऐसी शुभकामनाएं और आशीर्वाद दे रहे हैं। And looking forward with the mercy of Lord Krishna to meet you all again very soon. और महाराज जी, यदि भगवान चाहेंगे तो उनकी कृपा से आप सभी से पुनः मिलना संभव होगा, ऐसी आशा और इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। My gratitude to Guru Maharaj and all the devotees serving on this Japa talk. Thank you, Padma Mali Prabhu, for translating. और महाराज जी, गुरु महाराज जी का भी आभार व्यक्त कर रहे हैं। And most of all, thank you, our founder Acharya, Srila Bhai Charnarvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. और सारी एक प्रकार से सारा धन्यवाद आभार श्री प्रभुपाद जी को जाता है, जो कि हमारे इस आंदोलन या हमारी संस्था के फाउंडर आचार्य है, संस्थापक आचार्य है। Jai. Grantaraj Srimad Bhagavad Gita ki jai. Srila Prabhupada ki jai. जय Chant Japa with Lokanath Swami Maharaj ki jai. जय। Gaur Premanande. Hari Hari Bol. तो बहुत बहुत धन्यवाद। We are very much thankful for your association and guidance, Maharaj. I just want to share one coincidence. I don't know. Since last night to this morning, I received 3 messages from various devotees consecutive. All were announcing some departures. And then today, by some special arrangements, Your Holiness spoke on the very exact topic. It was like Krishna's mercy on all those devotees, on all those souls or jivas, or even as we had Shalini Mataji, whose mother left. So it was, today's talk was specially, that's how I'm reflecting. Today's talk was a special arrangement for all those devotees who lost someone from their family. And today's talk and your association was like a special arrangement made by Lord for all of them. Thank you so very much, Maharaj. It was certainly something, I would say, Daivavash, by the mercy of Lord and Guru Maharaj. Your Holiness chose this particular special, extra special topic and shared with all of us, and taking us to the inner course of our meditation, where we have to actually prepare for this final exam. So thank you so very much, Maharaj, and looking forward for your association and also guidance in the coming future days. And already, as you mercifully announced the topic today, the very important aspect of our devotional life. Well, that's such a beautiful point,
that the devotees we are around today are most likely to be present when we would be leaving our bodies. Such a deep thought and point. Thank you for sharing that, Maharaj. Thank you again. So सभी भक्तों से अनुरोध है, हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके परम पूज्य श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं कि महाराज जी ने हमें इतने महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हमारा ध्यान एक प्रकार से केंद्रित करवाया कि हमें किस प्रकार से हमारा मरण सोचना होगा, किस प्रकार से हमें तैयारियां करनी होगी इस महत्वपूर्ण अंतिम परीक्षा के लिए। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके महाराज जी का आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साथ ही में कुछ भक्तों के मैसेजेस आए हैं। सो ग्रेटर नोएडा से स्वरूपान प्रभु बताया है कि ग्रेटर नोएडा से फॉर्चूनेट पीपल एडमिट टीम के सदस्य शालिनी माता जी, जिन्होंने स्वयं ही बताया उनके माता जी ने कल कैंसर की वजह से अपना शरीर त्यागा है। और साथ ही में मॉरिशस से हमारी गुरु बहन राम पत्नी माता जी, जो भी कुछ हार्ट प्रॉब्लम थे उन्होंने भी कल शरीर त्यागा है 7 बजे। उनकी उम्र भी 67 इयर्स की थी। और साथ ही में हमें समाचार प्राप्त हुए हैं कि अष्टप्रहर लीला माता जी भोपाल से जो है हमारी गुरु बहन, उनके पतिदेव को भी हार्ट प्रॉब्लम से और अभी वेंटिलेटर पर है प्रभु जी। तो इन सभी भक्तों ने कहा है कि जूम जपा में जितने भी भक्त उपस्थित है, देखिए महाराज जी ने आज काफी महत्वपूर्ण बात ये भी बताई कि प्रार्थना भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे आध्यात्मिक जीवन का। और जब भक्त प्रार्थना करते हैं तो अनुकूल प्रार्थना बनती है। तो आप सभी से अनुरोध है, पुनः एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का हम उच्चारण करके इन सभी